Nowadays we are discussing about various type of heart disease and cardiovascular problems. And our today's topic is angina pectoris. Hello and welcome to you all in my channel. In this word, this angina means struggle. And this word pectoris means chest. Angina means struggle, pectoris means chest. Okay, this is the meaning of angina and the word pectoris. So angina pectoris means struggle is continuing in which places? In your chest. So which type of struggle is it? This is chest pain. This is chest pain. Okay. So angina pectoris is a chest pain. If we try to write down the definition of this angina pectoris, we can write in this way. This angina pectoris is the chest pain. Okay, first point is this. It is a chest pain. Why this chest pain is created? Due to it is a which type of heart disease? It is a coronary heart disease. So chest pain in due to coronary heart disease. Okay, so where will be the problem? Problem will be in the coronary artery. Okay, problem will be in your coronary artery, not in your heart. This is the basic phenomena of this angina pectoris. In case of angina pectoris, there has no issue, no problem in your heart. Where is your problem? Your problem in your coronary artery. Where is your problem? In coronary artery. Okay. Coronary artery. This is your problematic area. Where is your problem? In coronary artery. We all know about what is this coronary artery, right? Here this is the diagram of a heart. Okay, and this red portion is aorta, by which the oxygenated blood can carry in our heart, right? And coronary arteries are the arterial capillaries in your heart. Arterial capillaries means these red like blood vessels. These red blood vessels. Arterial blood vessels. Sorry for this capillary word. It is arterial blood vessels. Arterial blood vessels from your aorta. Right. So by these arterial blood vessels, what will happen? Your oxygenated blood which is carrying in your heart, that will flow in your heart by the help of this coronary artery, right? So it is, if we write down here, this is right side coronary artery and this one is left side. So this is left side coronary artery, right? These are the left side coronary artery, these are the right side coronary artery. Okay, so by the help of these coronary arteries, the oxygenated blood can flow through the in your whole heart, right? So what is the
functions, what is the function of this coronary artery? If anyone asks you, so what is the function of this coronary artery? What will happen by this coronary artery? Let's see. Oxygenated blood can carry through this coronary artery in each and every in your cardiac muscles. Okay, what I said, by the help of this coronary artery, oxygenated blood can carry in your cardiac muscles or myocardium. Now यहाँ पे क्या होता है ये पहले समझो। यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी द्वारा जो फ्लो हो रहा है, क्या बोला मैंने? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कोरोनरी आर्टरी द्वारा यहाँ पे हार्ट पे फ्लो हो रहा है, ये कहाँ पे पहुंच रहा है? इन योर पूरा जो हार्ट है, हार्ट का जो मायोकार्डियम और कार्डियक मसल्स जो है वहां पे पहुंच रहा है। अब कार्डियक मसल्स का जो सेल्स है उसको वो कार्डियक मसल्स का जो सेल्स है उस सेल को जीवित रहने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ये जो कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है पूरा हार्ट पे, वहां से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से उसको ऑक्सीजन मिलेगा। समझ रहे हो बात को? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो कोरोनरी आर्टरी जो है which can helps to circulate or flow the oxygenated blood in your heart, right? तो ये हार्ट के अंदर जब ये फ्लो हो रहा है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो होने के दौरान यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कहां पे जाएगा? ब्लड का जो ऑक्सीजन है वो कहां पे जाएगा? इन कार्डियक मसल्स। क्योंकि कार्डियक मसल्स को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लाइक एनी अदर सेल्स, एनी अदर टिश्यूज, वी नो टू सर्वाइव each and every cells and tissues that need oxygen, right? तो हम लोग कह सकते हैं to survive and proper function, function properly, heart require oxygen. राइट? ऑक्सीजन के अलावा तो ये सेल डेड हो जाएगा, मर जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स का जो सेल्स है उसको प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर्ली उसको अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए उसको जो ऑक्सीजन चाहिए, उसको जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कहां से होगा? बाय दिस कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे जितना सारे कार्डियक मसल्स का जो सेल्स है, जो मायोकार्डियम सेल्स है, उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो उसको प्रॉपर्ली अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसको एटीपी और जो हम कहते हैं जो पावर जो होता है, एनर्जी जो होता है, एनर्जी भी नहीं जनरेट कर पाएगा। अगर ये सेल एनर्जी नहीं जनरेट कर पाएगा तो इसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी काम नहीं करेगा। ये जो मूवमेंट जो होता है, जो ये ब्लड को जो पंप करता है, पंप करने के लिए उसको जो काम करना पड़ता है, उसको जो फंक्शन करना पड़ता है, उसको जो पावर बिल्डअप करना पड़ता है, दैट एनर्जी विल नॉट प्रोड्यूस। समझ रहे हो बात को? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए मैं इसको इतना बार रिपीट कर रहा हूं। क्या होता है कि यहाँ पे जो हार्ट का जो कार्डियक मसल्स है, मसल्स को अगर उसको जीवित रहना है तो उसको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का।
और वो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? बाय दिस कोरोनरी आर्टरी। समझ रहे हो? तो अगर मान लीजिए कि यहां पे प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है? प्रॉब्लम हुआ इन योर कोरोनरी आर्टरी, राइट? सो इफ there is some problem in your coronary artery, then what happen? कोरोनरी आर्टरी पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स का जो सेल्स है, जो मायोकार्डियम्स जो है, उसको ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाएगा। उसका जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाएगा। जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन उसको मिलेगा नहीं, तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, राइट? तो अगर ये फंक्शन अगर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, जब ये फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसका जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पा रहा है, देन व्हाट विल हैपन? ऑक्सीजन डिफिशियंसी विल occur, राइट? ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाएगा हार्ट पे। हार्ट का जो मसल्स है, मसल्स पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का डिफिशियंसी। सो ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन हार्ट मसल में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाएगा। क्योंकि देयर हैज सम प्रॉब्लम इन आवर कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई हो रहा है, वो ब्लड भी सप्लाई नहीं हो पाएगा, सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। अगर वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है तो ऑक्सीजन भी कार्ड मसल्स और कार्डियक मसल्स पे रीच नहीं कर पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। तो ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाएगा इन योर कार्डियक मसल। तो अगर हार्ट पे, ये जो हार्ट है, हार्ट पे अगर ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो गया, ऑक्सीजन का अगर जरूरत है, जितना जरूरत है ऑक्सीजन का उतना नहीं पहुंच पा रहा है थ्रू दिस कोरोनरी आर्टरी, देन ये फंक्शन क्या कर पाएगा? ठीक से नहीं कर पाएगा। इसको जो एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, ये पंप नहीं ठीक से कर पाएगा, राइट? तो अगर ये पंप ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण ये अगर पंप ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो देन वी कैन कॉल दिस हार्ट एज द वीकेस्ट हार्ट और वीक हार्ट। ये वीक हो गया है, ये हार्ट उतना काम नहीं कर रहा है। तो ये जो वीक हार्ट का कॉन्सेप्ट है, ये जो हार्ट जो है ये वीक हो गया है, तो उस टाइम पे हम इस वीक हार्ट को कहेंगे, एट दैट टाइम वी विल कॉल दिस हार्ट एज इस्केमिक हार्ट। क्या कहेंगे? वी विल कॉल दिस ऑक्सीजन डिफिशियंसी हार्ट इज ischemic heart. So ischemic heart means already there has some deficiency of oxygen in the heart and the heart is weak. Heart can function properly. Okay. So तो ये है ischemic heart. I think you have understand what is ischemic heart. Ischemic heart means ये जो हार्ट है, हार्ट का ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो गया है, हार्ट का जो मायोकार्डियम है वो ठीक से प्रॉपर्ली वहां पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है थ्रू दिस कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिक्वायरमेंट्स था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो देन इस टाइम this heart is called ischemic heart, right? And आप ये बात को ध्यान से समझना, इस हार्ट को तो हम कहेंगे ischemic heart, लेकिन ये जो कंडीशन जो अराइज हुआ है, ये जो प्रॉपर्ली जो कंडीशन जो अराइज हुआ है, ये जो कोरोनरी आर्टरी काम नहीं कर रहा है, इसलिए
ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, हार्ट वीक हो गया है, ये जो पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, ये पूरा इंसिडेंट को हम क्या कहेंगे? मायोकार्डियल इस्चेमिया। क्या कहेंगे? मायोकार्डियल इस्चेमिया। ओके, ये जो प्रॉपर जो पूरा जो कंडीशन जो है, ये पूरा कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मायोकार्डियल इस्चेमिया। तो ये मायोकार्डियल इस्चेमिया जो है, इस कंडीशन को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो डिस्क्राइब कैसे करेंगे? मायोकार्डियल इस्चेमिया इज व्हेन blood flow in cardiac muscles or myocardium, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, when blood flow, oxygenated blood flow, when oxygenated blood flow in the heart muscles or myocardium is obstructed, when oxygenated blood flow in myocardium or heart muscles is become obstructed by partial or completely blockage of coronary artery. This is the proper definition of myocardial ischemia. Myocardial ischemia, we already know that ischemia means ischemia condition, ischemic condition is oxygen deficiency heart or weak heart, right? So we have to just add this myocardial condition with this ischemia. So we can say the oxygenated blood flow, okay, I am writing oxygenated blood flow in heart muscles or myocardium, heart muscles or myocardium is become obstructed, मतलब उसको रोक दिया जाता है, obstructed हो जाता है. Oxygenated blood flow in myocardium is become obstructed by partial or completely, by partial or completely blockage of coronary artery. Blockage of coronary artery or CA. Okay, so this is the proper definition of myocardial ischemia. Okay, so now if we summarize the whole phenomena, what we can observe: angina means struggle, pectoris means chest. So here we are talking about the struggle in our chest. So it means angina pectoris means it is a chest pain, right? First point is this. So first point, why it is generated? Because due to coronary heart disease, so problem is in your coronary artery, right? Coronary artery, what is coronary artery? We all know about this. By the help of this coronary artery, oxygenated blood can flow through your whole heart, right? तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है, कोरोनरी आर्टरी पे प्रॉब्लम हो रहा है, नॉट प्रॉब्लम इन योर हार्ट, डायरेक्टली नॉट प्रॉब्लम इन योर हार्ट, प्रॉब्लम इन योर कोरोनरी आर्टरी पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या होता है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्लो हो रहा है, वो नहीं फ्लो हो पाएगा. तो यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स को जीवित रहने के लिए और सर्वाइव और फंक्शन करने के लिए उसको जो ऑक्सीजन का अर्ज है, ऑक्सीजन का नीड है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक से नहीं
सर्कुलेट हो रहा है। तो अगर वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो उसको उस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो क्या हो जाएगा, हार्ट में ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, राइट। हार्ट में अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, उस सेल को अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा, वो पंप नहीं कर पाएगा, राइट। अगर वो पंप नहीं कर पाएगा तो उस हार्ट को हम क्या कहेंगे, वो वीक हो गया है, दैट हार्ट बिकम वीक। At that time oxygen deficiency or heart or weak heart is called ischemic heart, right, ischemic heart। तो ये तो हो गया हार्ट का नाम दे दिया हम लोगों ने ischemic heart। अब ये जो कंडीशन जो पूरा अराइज हुआ, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हुआ है, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो गया है, ये जो पूरा जो इतना जो मैंने बोला, ये पूरा चीज को अगर कंडीशन को में एक वर्ड में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, मेडिकल टर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इस्चेमिया, राइट, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इस्चेमिया। तो मायोकार्डियल इस्चेमिया का अगर प्रॉपर डेफिनेशन पूछा जाए तो व्हाट विल बी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मायोकार्डियल इस्चेमिया? वी ऑलरेडी नो इस्चेमिया मींस oxygen deficiency heart or weak heart, and myocardial ischemia means oxygenated blood flow in myocardia. Oxygenated blood flow in myocardium become obstructed by the blockage of partial or complete blockage of coronary artery. I hope you have understand this is the whole phenomena। तो ये जब होता है, ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इस्चेमिया। Now we will understand which type of blockage or which type of what is called partial blockage or what is called complete blockage in this coronary artery, and how it's generated and why it's occur. Okay, let's see. Now if we consider a little portion of this coronary artery, and I am drawing it in here, suppose this is the portion of this artery, coronary artery, okay, so and this is the internal diameter of this artery. So in normal condition what happens, in normal condition blood can flow fluently through this artery, and at that time there is no changes of this internal diameter of this artery, but it is actually normal condition. But if for a certain condition this portion of the artery can become squeezed, what I have said, the outer pressure, it may be, it depends on some several factors, it may some several pressure or tension or stress, maybe whatever, or any reason, the artery become squeezed in a certain portion. Artery become squeezed in a certain portion, and at that place, at that area, diameter is become narrow. So at that time, at the time of blood flow, it can't flow fluently because
in this place the coronary artery become squeezed, okay, or constricted. So this condition is called, so this squeezed condition is called spasm. So it's called coronary artery spasm or vasospasm, coronary artery vasospasm. Coronary vasospasm. So blood flow rate, so blood flow rate from here will decrease, will hamper. ब्लड जो फ्लो हो रहा था नॉर्मल कंडीशन में डायरेक्ट फ्लो हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, बट इन ए सर्टेन कंडीशन ये अगर स्क्वीज्ड हो गया, ये अगर स्क्वीज्ड हो जाता है तो यहाँ का जो डायमीटर है वो डायमीटर भी नैरो हो जाता है, राइट। तो अगर कोई भी कंडीशन मान लो कोई भी कारण में ये प्रेशर में हो सकता है, कोई स्ट्रेस पे हो सकता है, कोई भी कारण मान लो कि ये एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, अगर मान लो कि हो गया, ठीक है, यही मैं बोलना चाहता हूं कि एक्चुअली होता तो नहीं है लेकिन हो गया कोई भी कारण, तो ये अगर स्क्वीज्ड हो जाता है तो यहाँ पे जो ब्लड जो फ्लो हो रहा था यहाँ पे जाके इसके बाद जो यहाँ पे ये ब्लड नहीं फ्लो हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो स्क्वीज्ड हो गया है इसको हम कहेंगे वैसोस्पाज्म और कोरोनरी आर्टरी वैसोस्पाज्म। तो ये नॉर्मल नहीं है ना, तो ये एक्चुअली उतना मतलब क्या है कि उतना कॉमन नहीं है, उतना कॉमन नहीं है, दिस इज अनकॉमन, दिस इज अनकॉमन, अनकॉमन और रेयर। So if this condition is arised, then we can call this variant angina or vasoplastic angina. What we can call variant angina or vasoplastic angina. ओके, तो ये बहुत रेयर है, एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया मान लो, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी जो है ये कोई भी एक जगह पे स्क्वीज्ड हो गया, ओके, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया इन ए सर्टेन प्लेस, तो क्या होता है उसके बाद ये ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, मतलब मान लो कि यहाँ पे हो गया तो ये भी जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसके बाद ये ब्लड नहीं फ्लो हो पाएगा फ्लुएंटली, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके नीचे जो पोर्शन है वहां पे ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होने लगेगा, वहां पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। तो अगर इस तरह होता है, इस तरह अगर मान लो कंडीशन अराइज होता है, देन वी कैन कॉल इट व्हिच टाइप ऑफ एंजाइना, variant angina or vasoplastic angina. Okay, I hope you have understand each and every points, and we will continue this in our next episode. Till then, bye bye, and please like and subscribe my channel.